Okay, so we'll start further. Direct material issued for production. So production account, that is work in progress account, will be debited and direct material account will be credited. So you need to understand the flow. And when it is returned to store, so this store account should be debited and work in progress account should be credited. Okay. When material is returned to creditor, so creditor account should be debited and store account should be credited. So like that, you should remember the flow. Okay. So look at the PPT now. This is already done. This is done. This is also done. Material return to store we have already seen. Store account should be debited and work in progress account should be credited. And in both the cases, that is integrated and non-integrated cost accounting system, the journal entry is going to be the same. Okay. Now indirect material, if it is returned to store, this entry I have not seen, but if indirect overhead is returned, so look at the first entry. Okay, material issued for factory, है ना? Material issued for factory. So factory account was debited, and when it is returned to store, indirect material. Okay, indirect material when it is returned, it is always assumed that it is being returned from factory to store. Whenever the material is returned, it is always returned to store. Okay, so and if it is direct material, it will be returned from WIP. If it is indirect material, it may be from factory, office, selling, but by default, you will have to credit that factory account only. So when direct material returned to store, then store account debit to work in progress because direct material is applied in work in progress directly. Okay. If indirect material is returned, store account should be debited, but which account will be credited? Factory overheads. Okay. Now look at this. Material returned to supplier. So when material is returned to supplier, so supplier account should be debited and store account should be credited. This is the flow, correct? This is the flow. From creditor, you got the material in store. From store, you got the material in work in progress. From work in progress, it is going to be finished goods. After finished goods, the selling expenses will be applied. That is cost of sales. And thereafter, it will be sold out. Okay, this is the flow. You need to remember this. And if you remember this, you will be easily passing your journal entries. So when you purchase the material, you debited store account, you credited your creditor account if it was on credit basis. But if you are returning it back to creditor, creditor account should be debited and store account should be credited. So you need to understand the flow of return. So when it is coming in store to creditor, when store से WIP में गया तो WIP to store, WIP से finish में गया finish to WIP, ठीक है? और अगर रिटर्न कर रहे हैं आप तो वर्क इन प्रोग्रेस से रिटर्न गया कहाँ पे? स्टोर में, ठीक है? रिटर्न टू स्टोर, तो रिटर्न टू स्टोर कहाँ से होता है? कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस से होता है. रिटर्न टू क्रेडिटर कहाँ से होगा? कभी भी स्टोर से होगा, ठीक है? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, look at this entry. Material returned to supplier. So supplier account should be debited. If it is on credit basis, if it is on cash or bank, so you will be returning back your, you will be getting back your cash or bank return. Okay. So whatever is the case, creditor account debit to store when it is returned to supplier. Okay. When it is returned to supplier, it should, the supplier, that is creditor account, should be debited, and which account will be credited? Your store account will be credited. Let me know if there is any problem in understanding this. So before this, we were charging, we were in direct relation, means we were going in a forward direction. Now we are going in reverse direction. ठीक है? पहले हम लोग कहाँ से कहाँ गए? क्रेडिटर से स्टोर, स्टोर से वर्क इन प्रोग्रेस,
फिर वर्क इन प्रोग्रेस से हम लोग स्टोर में गए, स्टोर से वापस से क्रेडिटर। तो जब आप परचेस करेंगे और प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो सीधी सीधी एंट्री आएगी, और अगर आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न के केस में वो बैक टू बैक रिटर्न होता जाएगा। ठीक है, तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस से स्टोर में गया तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर से क्रेडिटर के पास गया तो क्रेडिटर टू स्टोर। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट, क्वेश्चन? नो सर। ओके। पेमेंट मेड टू सप्लायर, एंड लुक एट दिस एंट्री। आप सिर्फ ध्यान देना है कि क्रेडिटर, वी कैन नॉट यूज द वर्ड क्रेडिटर हियर, so we are using general ledger adjustment account. This is the only difference between integrated and non-integrated cost accounting system. So we cannot use cash, bank, creditor, debtor. These kinds of words cannot be used here. Okay, so instead of that, we are going to use general ledger adjustment account or costing ledger control account, cost ledger control account. So the both this both account are same only. So either ways you can use it. Okay, so we will move further now. Okay, now look at this entry. Payment made to supplier. And payment made to supplier or creditor. Creditor account debit to cash. What is there in the chat box? Sorry for late. Okay, no issues. हाँ, when you are making payment to supplier, है ना, supplier को आपने पेमेंट किया तो क्रेडिटर कैश जो नॉर्मल एंट्रीज हम लोग पास करते थे, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्रेडिटर टू कैश करके अपन एंट्री पास करते हैं, कैश और बैंक वॉटेवर जो भी, क्रेडिटर टू कैश और बैंक, ये आपकी नॉर्मल एंट्री है जो आप क्या करते हैं पेमेंट करते वक्त आप पास करते हैं। नाउ टेल मी, कैन वी यूज द वर्ड क्रेडिटर इन नॉन इंटीग्रेटेड? यस और नो? क्रेडिटर वर्ड यूज कर सकते हैं क्या नो नॉन सर। इंटीग्रेटेड में? कैन वी यूज कैश? नो। तो एंट्री क्या हो जाएगी फिर? नो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ ऐसी चीजें जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड? इट इज सपोर्टेड सो दैट द एंट्री कैन बी डबल एंट्री। Okay, so dual entry or for giving the double effect of the entry, if we cannot use any financial word, then we use general ledger adjustment account, correct? उसी के लिए हम लोग करते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसीलिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पर तो दोनों ही जगह पे फाइनेंशियल ही है, मतलब क्रेडिटर इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, कैश इज योर रियल अकाउंट। तो पर्सनल और रियल अकाउंट दोनों ही हम लोग यहाँ पर बनाते नहीं है, सिवाय आपके इन्वेंट्री के, दैट इज स्टोर, है ना। उसके अलावा आप किसी भी कोई भी पर्सनल और रियल अकाउंट यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते नॉन इंटीग्रेटेड में। सो अगर डेबिट में फाइनेंशियल है तो आप जनरल लेजर वहाँ पे डेबिट कर सकते थे, क्रेडिट में है तो वहाँ पे जनरल लेजर क्रेडिट कर सकते हैं, बट दोनों ही जगह अगर फाइनेंशियल है तो आप उस एंट्री को यहाँ पर पास नहीं कर पाएंगे। तो समझा आपने क्यों एंट्री पास नहीं किया नॉन इंटीग्रेटेड में पेमेंट की? बिकॉज पेमेंट टू क्रेडिटर मीन्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, नाइदर क्रेडिटर नॉर कैश word is going to be used here. So when both the part is financial, that entry won't be passed in cost accounting. ठीक है, in non-integrated cost accounting system, these entries won't be passed because these two things are related to finance. If one of the entry, one of the part, either debit or credit is related to your finance, you can use general ledger adjustment account or cost ledger control account. But when both the part are financial, you need to ignore the entry in non-integrated cost accounting system. ठीक है, let me know if you have understood this. बोलो, नो एंट्री क्यों आया, समझ में आया? यस सर। Okay. Okay, similarly, when you are receiving payment from the customer, when you are receiving payment from the customer, cash or bank account will be debited because you are receiving cash or bank. And from where you are receiving this, from debtors you are receiving this, so debtor account should be credited. So cash or bank account debit to debtor.
And similarly, neither cash nor debtor account is going to be used in non-integrated cost accounting system. It is creating इधर आ, disturbance. किसका है disturbance इधर ये? आ, मेरे को उधर पढ़ने का है। हट आर्शिनाज. हट जा बोली। Okay. Okay. So neither cash nor debtor account is going to be used in non-integrated cash account costing system. So the entry will be no entry here. Okay. So cash is your real account, debtor is your personal account. Okay. These two accounts are not going to be used here. So there is no, it doesn't make sense if you debit the same in general ledger adjustment account, debit to general ledger adjustment account. So this kind of entry cannot be passed in non-integrated cost accounting system where both, that is debit as well as credit, is related to finance. Okay. Either it is real account or it is personal account. Okay. So is it that okay? Hai abhi bhi. So this is the very important entries. Whenever your question says you have made payment for wages, factory overheads, office expenses, selling expenses, okay, any expense, for any expenses if you are making payment. So what is the entry? हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं एक्सपेंसेस पेमेंट की? दैट एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड बिकॉज एज पर नॉमिनल रूल all expenses and losses should be debited, correct? तो expenses should be debited to cash और बैंक. आपको पता है जब expenses पे करते हैं तो आपके पास से cash और बैंक ये चीजें क्या होती है आपके पास से जा रही होती है. सो expenses account debit, expenses control account debit मतलब अगर आपका wages है तो wages control account debit, factory overhead control account debit, office overhead account debit, selling and distribution overhead account debit. So जो भी एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं आपको क्या करना है वो पर्टिकुलर अकाउंट आपको क्या करना है डेबिट करना है. ठीक है. सो ये हो गया आपका एक्सपेंसेस पेमेंट की एंट्री. आपको वो पर्टिकुलर अकाउंट आपको क्या करना है डेबिट करना है टू कैश इन बैंक. और इसमें से कौन सी चीज हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं? सी वेजेस नॉमिनल है, फैक्ट्री ओवरहेड नॉमिनल है, ऑफिस एक्सपेंसेस भी नॉमिनल है, रिसर्च जो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है सारे नॉमिनल ही है. ठीक है. और जब भी आप पेमेंट करेंगे तो टू कैश और बैंक करेंगे. तो डेबिट आपको ये सारे एक्सपेंसेस करने हैं. अभी सब एक साथ में तो आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा. दे विल गिव यू सर्टेन एक्सपेंसेस. बोलेगा वेजेस पेमेंट किया है, फैक्ट्री ओवरहेड पेमेंट किया है, ऑफिस ओवरहेड पेमेंट किया है. तो जो भी आपने पेमेंट किया है या इनकर किया है या सिर्फ ऐसा लिख दिया है आपके क्वेश्चन में, कोई भी एक्सपेंसेस सिर्फ लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज पेड. ओके. व्हेन इट इज रिटन इट इज पेड. सो जब भी आपका कोई भी एक्सपेंसेस आता है क्वेश्चन में तो उस केस में आप क्या करते हैं वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को क्या करना होता है आपको डेबिट करना होता है. ठीक है. और कैश एंड बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे. और यहाँ पर क्या एंट्री आएगी उसकी? नॉन इंटीग्रेटेड में क्या एंट्री आएगी उसकी? सिर्फ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करना है और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना है क्योंकि कैश एंड बैंक वर्ड आप यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. ठीक है. सो व्हेन इट इज वेजेस पेड, अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि वेजेस पेड है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है. व्हेन इट इज फैक्ट्री ओवरहेड पेड, so factory overhead account debit to general ledger adjustment account. When it is office overhead expenses paid or administration expenses paid, so office and administration expenses account debit to general ledger adjustment account. ठीक है. If you look at this, see, whenever it is paid, you paid for material, that means store account debit to general ledger adjustment account. When you pay for direct labor to general ledger adjustment account. When you pay for direct overheads to general ledger adjustment account. When you pay for factory to general ledger adjustment account. When you pay for administration to general ledger adjustment account. When you pay for selling and distribution to कैश एंड बैंक अकाउंट. ठीक है. लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर. इसके अलावा आपको कुछ एंट्रीज आएगी लाइक फिनिश गुड्स आपको दिया होगा क्वेश्चन में. फिनिश गुड्स दिया होता है डायरेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड ऐसा करके दिया होता है. सो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस. ये एंट्री यहाँ पर ऐड नहीं किया, ये इसको ऐड करना. ये पीपीटी जो है वो इनकम्प्लीट रह गई थी लास्ट ईयर. सो आई विल कंप्लीट इट एंड देन आई विल शेयर इट वंस अगेन. तो इसमें ये सब एंट्रीज बाकी है.
सो जब वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश में जाता है और फिनिश से किस में जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन में दी होती है, इसलिए जर्नल एंट्री जैसा कुछ नहीं होता, आपके क्वेश्चन में दिया होता है फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो फिनिश गुड्स में जाता है। और फिर आपके क्वेश्चन में दिया होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है आपका फिनिश गुड्स है। ठीक है, ओके, लेट मी नो अगर आपको अभी तक के कोई भी डाउट है यहाँ पर, कोई क्वेश्चन है। बाकी का जो नो अपन सर। क्वेश्चन, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, और वी आर लर्निंग 2 चैप्टर्स टुगेदर, और दोनों ही चैप्टर को इक्वल वेटेज है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट कि ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शन पे आते हैं, वो ऑप्शन पे आए या ना आए, बट एग्जाम में इंटीग्रेटेड भी 15 मार्क्स के लिए आएगा और नॉन इंटीग्रेटेड भी 15 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका वेटेज होने वाला है आपके लिए। ठीक है, दो अलग अलग चैप्टर्स हैं ये, और दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आप जब जनरल एंट्री पास करते हैं इंटीग्रेटेड में, तो नॉर्मल जैसे हम लोग फाइनेंस में पास करते थे जनरल एंट्री, वैसे ही पास करना है, आप सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं। बट व्हेन यू पास द एंट्री इन नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी फाइनेंशियल आइटम्स का वर्ड यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। तो इसीलिए मैंने दो चैप्टर्स को अलग अलग नहीं रखा है, दोनों की जर्नल एंट्रीज आपको साथ में पढ़नी। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक एंट्रीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अभी क्वेश्चन जैसे जैसे आपको डिक्टेट करेगा, उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी एंट्रीज आप सोचना है और उसके हिसाब से आपको पास करना है। ठीक है, अभी नया कुछ नहीं आता है। अच्छा, एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था, अगर इसके अलावा आपको और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपने डायरेक्ट लेबर अप्लाई किया है। ठीक है, सो लेट मी नो कि डायरेक्ट लेबर अप्लाई कहाँ पर होते हैं। चलो, डायरेक्ट लेबर अप्लाई कहाँ पे होते हैं? एक तो आप पे करने की एंट्री पास करोगे, कोई भी एक्सपेंसेस, आप पहले तो पे करने की एंट्री पास करोगे। पे करने के लिए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है और क्रेडिट करना है आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन आप उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो आपको दिया है क्वेश्चन में कि आपने लेबर अप्लाई किया है या फिर एब्जॉर्ब किया है। डायरेक्ट लेबर एब्जॉर्ब हुआ है या फिर अप्लाई हुआ है, तो कहाँ पर अप्लाई होता है या कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, बताओ मुझे। डायरेक्ट लेबर कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन, है ना? प्रोडक्शन में यूज होंगे, ये एरो आपको बताएगा कि कहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो कहाँ पे जाने वाला है? यू हैव पेड इट, मतलब डायरेक्ट लेबर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, और अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड में है तो डायरेक्ट लेबर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। करेक्ट, आपने ये पर्टिकुलर एंट्री पास कर दी। अब आपको नेक्स्ट दिया है कि डायरेक्ट लेबर अप्लाइड या डायरेक्ट लेबर एब्जॉर्ब। तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर आपके वर्क इन प्रोग्रेस में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर काम किस पे करने वाले हैं? तो डायरेक्ट लेबर काम कहाँ करने वाले हैं? वर्क इन प्रोग्रेस में। दे विल बी अप्लाइड इन वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पे अप्लाई होते हैं या कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बोलो, चार्ट को एकदम ध्यान से देखना है और उसके बाद इस चीज का आंसर देना। वर्क इन प्रोग्रेस पे सर। वर्क इन प्रोग्रेस में देखो, वर्क हाँ वर्क इन प्रोग्रेस में अप्लाई होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहाँ पर अप्लाई होते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, जब ये अप्लाई होने की बात होती है, व्हेन यू आर पेइंग दिस, तो आपको पता है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड कैश और बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। व्हेन इट इज अप्लाइड और व्हेन इट इज एब्सॉर्ब, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर, in absence of information, factory overheads are always absorbed in work in progress. That needs to be remembered. Okay, the flow, this is the only reason I have prepared this chart, so that you should know. They will not give that factory overheads are being absorbed in work in progress. They will never give like this. Direct labor is going to be absorbed in work in progress. They won't give the sequence. You need to remember. You need to remember that direct labors are working in factory or working on a product, so it is work in progress. Okay, so when you talk about factory or when you talk about work in progress, it is always the same. When you talk about production,
Remember the word production is the substitute for work in progress. So whenever they say direct labor applied in production, so it is by default work in progress. Okay, they can give you like this, or they can directly write direct labor absorbed, that's it, or direct labor applied. Okay, so they will always be applied where? In work in progress. Okay, factory overheads are applied, they are always applied in work in progress. Okay, now tell me, if you are given, means I have not prepared this here, I will add the slide. After this I will add this slide and I will share the new PPT with you. But now tell me, if you are coming across with the question that it says administration overheads are applied or administration overheads are absorbed, what will be the journal entry? Administration overhead debited to finished goods. बेटा जहाँ पे एरो जा रहा होता है वो डेबिट होता है कभी भी, ठीक है? Finish good. फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू, डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ, एंड व्हेन इट इज पेड तो एंट्री क्या पास करोगे? आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे किया तो क्या एंट्री पास करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू कैशियर बैंक. और अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो कैश एंड बैंक की जगह पे क्या यूज होगा? इंटीग्रेटेड के हिसाब से आपकी एंट्री राइट है, नॉन इंटीग्रेटेड में कैश एंड बैंक यूज कर सकते हैं क्या? नॉन इंटीग्रेटेड मीन्स you are not maintaining your financial accounts, means cash, bank, creditor, these words cannot be used. So if I say office expenses paid, so office expenses to cash and bank की entry integrated के हिसाब से correct है अगर आप integrated cost accounting method कर रहे हैं तो, लेकिन अगर ये non integrated cost accounting method है, so now tell me, can you use cash और bank? क्या आप यूज कर सकते हैं? नो सर. तो उसकी No, जगह पे sir. क्या यूज करना पड़ेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट. जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा उसकी जगह पे. So when you are paying administration expenses, now the entry will be administration expenses account debit or overheads account debit to general ledger adjustment account. Now tell me, if you are coming across with the question that selling expenses applied or absorbed, selling expenses कहाँ पे absorb होंगे? Cost of सेल्स. Cost of sales, correct है? So cost of sales account debit to selling overheads, दोनों जगह पे एंट्री सेम होगी. ये जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, इस ये एंट्री सब जगह सेम होती है बिकॉज दे आर नॉट, दे आर नॉमिनल अकाउंट, और इवन इफ दे आर रिलेटेड टू स्टॉक, तो स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड हम लोग एंट्रीज यहाँ पे पास करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है? बाकी कोई भी आप रियल अकाउंट यहाँ पे या नॉमिनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट आप यूज नहीं करते, ठीक है? और सेल्स होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस टू सेल्स, और उसकी कई सारी एंट्रीज हैं सेल्स के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप किसी भी तरह से पास कर सकते हैं, तो इस हिसाब से भी आप एंट्रीज पास करते हैं. सेल्स का जो बैलेंस है वो फाइनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसलिए आप एरो देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ है, जबकि अगर आप एंट्रीज की तरफ देखेंगे तो इट इज डेटर अकाउंट डेबिट. आप सेल्स जब करते हैं तो इट इज डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज होती है. एंड यू नो कि हम लोग डेटर वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ डेटर्स हम लोग क्या करते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं टू सेल्स, ठीक है? तो व्हेन इट इज सेल्स, सेल्स किसको किया जाता है? डेटर को, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है? लेकिन डेटर वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते. क्या सेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, सेल्स वर्ड आप यूज कर सकते हैं क्योंकि सेल्स नॉमिनल है, सेल्स थोड़ी ना पर्सनल या रियल है, ठीक है? सो ये आप जो देख रहे हैं अंदर, ठीक है, दे आर को रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं. आइदर इट इज नॉमिनल, और इवन इफ इट इज नॉट नॉमिनल, फिनिश गुड्स के बारे में आपको पता है, इवन इफ इट इज नॉट नॉमिनल, हम लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है वो अकाउंट यहाँ पे पास करने वाले हैं, ठीक है? तो कुछ कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे बनाए जाते हैं. कुछ कंट्रोल अकाउंट मतलब उसमें से एक स्टोर है, एक वर्क इन प्रोग्रेस है और एक फिनिश गुड्स है. ये तीन अकाउंट आपके पास रह जाएगा, और चौथा जो है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बहुत बड़ा बनता है क्योंकि हर एक चीज के लिए दूसरा इफेक्ट देने के लिए जब आपके पास पॉसिबल नहीं होता तो आप क्या यूज करते हैं? जनरल लेजर
एडजस्टमेंट अकाउंट ही यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो दैट इज यूज्ड एवरीवेयर. तो ये एक फिर स्टोर, देन वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश, ये जो है 4 कंट्रोल अकाउंट जो है यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. आई विल बी शेयरिंग यू नोट्स ऑल्सो. नॉन इंटीग्रेटेड का मेरे पास पूरा क्वेश्चन बैंक है पूरी नॉन इंटीग्रेटेड में. सो आई विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो विथ यू. डोंट वरी, मेरे पास है नोट्स, मेरे को मिल जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा. लेट मी सर्च फर्स्ट. मैंने रखा है अपने पास. मिल नहीं रहा है फिलहाल अभी, but it is there with me, so I will find it out. If it is not there, I will have to get it from the old students, but that was prepared and shared, so I will get it and I will give you. So chapter 7, no, it is not there. No problem. I will share the questions with you later, or before the end, before the fourth lecture, because we need to complete non-integrated. I am not there on Saturday, so Saturday we will have tests, okay, through Google Form, and I will give you the assignment also, because there are 2 lectures that day. So first lecture, if you want to sleep, you can sleep, not a problem. But last lecture, you will be giving your test and you will be writing your assignments related to non-integrated, so that we will complete this chapter also within this week. Okay, there is nothing apart from passing journal entries. And if it is objective type, means if it is online, if the exam is online, this chapter is going to be the blessing for you, because they will only be asking journal entries on this chapter. Only journal entries will be asked, or else they ask the question like this: unfinished goods आपको कहाँ पे मिलेगा? चलो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. So we have some time, so we will be utilizing it. मुझे बताओ अनफिनिश्ड गुड्स आपको कौन से अकाउंट में मिलेगा? Work in progress. वर्क इन Work प्रोग्रेस in में मिलेगा. progress. Correct. So this type of questions are asked in the exam. Okay. For material, which account is maintained? मटेरियल के लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? सिंपल क्वेश्चन. Direct material. श्योर. विच अकाउंट इज गोइंग टू यूज फॉर मटेरियल? चलो यहाँ पर देख के बता दो, मैंने कॉपी करा. Store. यस, Store स्टोर ledger. लेजर कंट्रोल अकाउंट. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इज यूज्ड फॉर मटेरियल, है ना. याद रखना है ये सब सारे क्वेश्चन इस तरह से आपको आ सकते हैं. और एल्स अगर वो बोलेगा कि आपने मटेरियल के लिए पेमेंट किया है, लेबर के लिए पेमेंट किया है, ओवरहेड्स के लिए पेमेंट किया है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज? तो आपको उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास करना है. रिटर्न हुआ है मटेरियल, ठीक है, या फिर आपका मटेरियल इज सेंट टू प्रोडक्शन, तो आपको क्या एंट्रीज पास करना है. इसी तरह से एंट्रीज जो है वो आपको ऑनलाइन एग्जाम में इसी तरह से एंट्रीज आएंगी, ठीक है. और इसमें कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. जर्नल एंट्रीज है. इंटीग्रेटेड में क्या पास करना है, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या पास करना है, दैट्स इट. इंटीग्रेटेड में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नल एंट्रीज वोंट बी आस्क्ड which account is going to be debited and which account is going to be credited. This much is there in the exam. मतलब वो लोग एकदम क्लियरली भी आपको नहीं पूछेंगे कि कैसे क्या करना है, बट इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है. नॉन इंटीग्रेटेड का मेरे पास है, मींस मैंने बना के रखा हुआ है टेस्ट, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू गिव द टेस्ट. बट जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आ जा सकते हैं. मतलब इसका टेस्ट मैं आपको दे दूंगा. So test is ready. The only thing is this chapter should be completed in 4 lectures. So in 4th lecture today we will be practicing questions. So आपको practical questions आपको solve करने हैं इससे related. सर practical question में क्या आएगा? Today we will be passing journal entries only. सिर्फ इतना ही आज हम लोग करेंगे, ठीक है. और इसी को बेसिस लेके करना है.
ये एक, और दूसरा ये जो चार्ट है ये अच्छे से पढ़ लेना है। Whenever you are studying this chapter, you need to go through this chart first, and then what you can do, you can go for your questions. Okay, questions will be here and there. कभी कभी ऐसा बोलता है कि factory overheads applied in finished goods. ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड इन फिनिश्ड गुड्स, क्या एंट्री पास करनी है? क्लियरली दिया है, ऐसा नहीं दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड, क्लियरली दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड इन फिनिश्ड गुड्स। बोलो, आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाई हुआ है फिनिश गुड्स में, क्या एंट्री होगी? अरे कोई माइका लाल नहीं बताने वाला। The factory overhead account debit to finished goods. बेटा डेबिट कौन सा अकाउंट होता है? Finished goods account debit to factory. Finished goods Very account debit to factory overhead. Expenses account will only be debited when they are paid, when they are being paid. अच्छा, अगर आपको बोला है कि सेलिंग एक्सपेंसेस अप्लाइड इन प्रोडक्शन, बोलो। Work in progress account debit to selling overheads. वेरी गुड सिमरन। सिमरन की आवाज बहुत दिनों के बाद मैंने सुना। करेक्ट है एकदम, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस तरह से लॉजिकली एंट्रीज को याद रखना है। सो यू रिमेंबर के चीजें कहाँ से कौन से डायरेक्शन में जा रही है। इफ यू रिमेंबर दिस, सी आई हैव नॉट ट्राइड टू मेक यू रट्टाफाइड दोज एंट्रीज। रट्टाफाई करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ जनरल एंट्रीज, जो बुक में दिया है मैं आपको दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नोट्स में है सारी एंट्रीज जो बुक्स में दी हुई है आपके, तो आपको पूरी बुक्स की इमेजेस मिल जाएंगी ऑनलाइन बुक की, ठीक है। That is not the problem, but the problem is you need to understand this chapter, then only you will be able to enjoy this. When you understand the sequence, by default sequence, तो आपको फिर मजा आएगा फिर इसको जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए। अदरवाइज अगर इसको रट्टा मारेंगे आप कि मटेरियल आ रहा है उसकी एंट्री क्या है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में मतलब प्रोडक्शन में अप्लाई हो रहा है उसकी एंट्री क्या है, तो आप रट्टा मारेंगे तो आप बहुत देर तक की इसको याद भी नहीं रख पाएंगे। When you understand the things, you will be able to do it quickly also. अच्छा, तो अभी आज अटेंडेंस कौन ले रहा है, बिकॉज द टाइम इज गोइंग टू एंड नाउ। तो सेंड कर दिया था अटेंडेंस। अच्छा, भेज दिया। तो रोहित को आज टास्क मिल भी गया था बिना मतलब